हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ वो आपका पहला ही जो चैप्टर चल रहा है MHI 02 का रेनांसेस एंड द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल। पिछले वीडियो में मैंने जो है 3 टॉपिक्स पे आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराए थे। आज मैं बाकी के 3 टॉपिक्स पे नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ। उसके बाद अगले वीडियो में मैं जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उस पर नोट्स प्रोवाइड करा के ये चैप्टर जो है आपका यहीं पर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक मैंने लिया है इस बार वो है न्यू ग्रुप्स, जिसके अंडर आपके लॉयर्स एंड नोटरीज आते हैं। Lawyers and notaries became essential for a society where commerce dominated the scene. They drew up and interpreted the rules and written agreement to help the large-scale trade. An acute need for men skilled in drafting, recording, and authenticating contracts and letters was felt as the scale of commerce grew. These were basically the notaries who did not need the long and costly education provided by law school. Padua and Belgona were full-time professional centers for teaching conventional legal forms of drafting, various kinds of business document, and the correct type of handwriting for documents of public record. Now, all the intellectual activities were now not carried on by churchmen as in Middle Ages, but by members of the new profession. While Padua was the main center in this early phase of the growth of humanism, Florence, the city associated with the later flowering of humanistic culture, played a marginal role. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमैनिज्म। This new culture has been termed humanism by the 19th century scholars, but it does not appear in the writings of the Renaissance period. It may be noted that by the first half of the 15th century, the word humanist designated masters who taught academic subjects like grammar, rhetoric, poetry, history, and moral philosophy. Petrarch, Sallutit, Paggio, and Ficino are the leading personalities in the history of Italian humanism. They assumed that a dark age had set in after the decline of the Roman Empire due to the invasion of the barbarian. The newness of the age was entwined with the conscious imitation of the works of the ancient Greek and Roman writers. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका न्यू एजुकेशन। There were 3 types of school other than the universities and school conducted by religious order exclusively for their own members in late medieval and Renaissance Italy. Moreover, in many towns of northern Italy, communal schools began to appear in the 13th century. The curriculum of these schools did not change much despite the growth of humanism in the 14th century. Medieval curriculum arose the contempt of Petrarch and virtually all later humanists. Petrarch ideas included grammar, rhetoric, poetry, moral philosophy, and history. The humanists also insisted upon the mastery of classical Latin and Greek to study the ancient author. The humanists taught in various grammar schools. However, literature, art, and drama were the other vehicles of transmission of humanist ideas and not only the formal education the only way. तो यहाँ पे ये टॉपिक्स आप लोगों के ख़त्म होते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। एंड स्टूडेंट्स, एक और चीज़, जिन लोगों को अगर हिंदी मीडियम में भी नोट्स चाहिए, जिन बच्चों को, तो प्लीज़ वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख कर भेजें। अगर कोई भी बच्चा हिंदी मीडियम का है और अगर उसे हिंदी मीडियम में नोट्स चाहिए तो मैं उसको हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड करा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के भेजना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ताकि एक बार आइडिया हो जाए कि स्टूडेंट्स को ज़रूरत है भी कि नहीं है। दूसरा, जिन बच्चों को सॉल्व्ड असाइनमेंट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए या फिर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए इस सब्जेक्ट पे, वो भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, आपको सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। और ऑनलाइन क्लासेस हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बैच तो वैसे स्टार्ट किया जो कि चल रहा है, लेकिन अगर कोई मिड में भी एडमिशन लेना चाहे तो वो ले सकता है। ऐसा नहीं कि मैं एनरोलमेंट्स बंद कर दिए हैं, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि मैंने जैसा कि कहा कि ऑनलाइन क्लासेस भी जो है हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल होंगी आपकी और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल होंगी, दोनों सब्जेक्ट्स में अवेलेबल होंगी। और हाँ, एक और चीज़ मुझे बोलनी थी कि जैसे कि मैं 2 यूनिट्स कवर करूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिस तरीके से इन 2 यूनिट्स में से पूछे जाते हैं उस पे भी वीडियो बना के मैं डालूँगी, ताकि आप लोग अभी से प्रिपेयर करें तो ज़्यादा अच्छा है। या जो बच्चे अभी नहीं भी करना चाहते हैं, बाद में करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे उन लोगों को इधर उधर नहीं दौड़ना पड़ेगा। अगर इन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को वो लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो भी वो अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स से क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक बाय।